find one very common thing in the history of Israel-Palestine conflict, that the peace solutions have always been brokered by United States of America. You take Oslo Accords, you take Camp David Accords, right? You take 1956 wala agreement. Anything you take, the peace has been brokered by United States of America. But it is very unclear if Hamas or Israel is going to accept this resolution. यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस क्या होते हैं? बाइंडिंग होते हैं, राइट? नाउ इट इज पुटिंग अ प्रेशर ऑन बोथ द पार्टीज. Hamas has stated that it would continue its struggle against Israeli occupation. Look what Hamas calls Israeli occupation. मतलब जो पैलेस्टीन में इजरायलियों के घर हैं वो उस रीजन को, वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप के रीजन को कह रहा है कि ये इजराइल की ऑक्यूपेशन है. मतलब इजराइल ने वो एरिया क्या कर रखा है? कैप्चर कर रखा है. एफर्ट्स आर कंटिन्यूइंग टू स्टडी एंड क्लैरिफाई सम मैटर्स टू इंश्योर इम्प्लीमेंटेशन बाय इजरायली साइड, हमास स्पोक्स पर्सन जिहाद ताहा said on Tuesday. Algeria's UN ambassador Amar Benjama, the Arab representative on the council, said that while the text was not perfect, it offers a glimmer of hope to the Palestinians as the alternative is the continuing suffering. Right? So Algeria, now look at the say of Islamic countries on this particular matter. Then you have Lieutenant General Upendra Dwivedi has taken over as army chief. Right? Just a minute. Yeah. So I believe you all will be able to see the screen now. I hope all of you are seeing the screen. Okay, great. Now coming to the national news, the front page. See, here it is given that 2 Indian recruits in Russian army killed. Now this tells us about the pressure points. अब रशिया और इंडिया के बीच में जो है ये एक पेन पॉइंट बन जाएगा. दैट इंडियन नेशनल्स जो हैं वो रशियन आर्मी उनको रिक्रूट कर रही है, वो मारे गए. राइट? सी इट इज़ वेरी क्लियरली रिटन दैट इंडिया हैज़ स्ट्रांगली टेकन अप द मैटर विथ रशिया, विच मीन्स दैट अब ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है इंडिया रशिया के रिलेशंस में. चाइनीज़ पीएम ग्रीट्स मोदी फॉर 3rd टर्म. अब ये अपने आप में एक न्यूज़ है, इंटरेस्टिंग इंसाइट है कि चाइना जब ग्रीट कर रहा है नरेंद्र मोदी को, राइट, तो इसका क्या मैसेज, और काफ़ी लेट किया है चाइना ने, काफ़ी लेट में ग्रीट किया है. ये मतलब चाइना इज़ नॉट द फर्स्ट कंट्री. सुप्रीम कोर्ट सीक्स एनटीए's रेस्पॉन्स ऑन नीट लीक. नाउ इफ़ यू लुक इनटू दिस न्यूज़, तो ये आपको पता है ऑनगोइंग मैटर है. यू जस्ट हैव टू गो थ्रू इट फटाफट. कंजर्वेटिव्स इन द यूके ट्राई टू विन बैक वोटर्स. राइट? So there is this trend that we can see globally that more than 40 countries are facing election. More than 40 countries are facing election, and in all of the countries there is a rise of conservatism and a fall of libertarianism. You take South Africa, you take India, you take America, you take Britain for that matter, you take entire Europe. In Europe you will find that recently the European Parliament elections have been conducted, and the right-wing parties have won most of the seats in the 700-odd member European Assembly. So this is the global trend where conservatism is right now on the rise. Now what do we mean by conservatism? So it is an ideology. It is an ideology of running a country. It is an ideology of state as to relying on your very ancient roots, maintaining the culture, not really allowing changes in the present norms of society and everything, not very eager to change, rather they want to preserve. That is the kind of mindset with respect to conservatives, right? So these are the angles. But another interesting thing, I mean, today most of the students complain, right, that economic editorial समझ में नहीं आते. So that is the pain point that I understand. So I'm going to take this up, and
see, this article is important with respect to logical reasoning. Okay. And when you read this article, there are certain fundamentals of economy that you should be knowing. For example, if I ask you that for an economy to grow, what is the basic thing that is required? And that is investment. An economy requires investments. An economy requires investments to grow. Now, what could be the source of these investments? The source of these investments could be your income. The source of these investments could be loans, right? The source must be some gratuitous offerings that you might have received, some donation camps and any other thing. What other could be the source of these investments? Right? There could be no other source that we can think of as of now. Right? You can also say, yeah, okay, sir, by issuing equity shares, equity market. Okay, issuing shares. Okay. So, in an economy, for an economy to grow, investments are very important. And these are the sources of investments. Now, let us break it like this. Income. For income, what is important? For income, employment is important. For income, employment is important. Okay. Now, employment means formal economy. Employment means formal economy, and therefore it is the duty of the government, to provide for jobs. Okay? Because we follow socialist model, and in socialist model, government is the provider. Government is the provider, right? So if the government cannot, now how the government can provide you employment? So there could be direct ways, there could be indirect ways. What could be indirect ways where government can help you in promoting your employment? So the indirect ways are through certain schemes like education loans. For higher education, children take education loans and they are offered at low interest rates. These loans are offered at low interest rates because it is the government and the bank relation which is helping you in securing your higher education. Then it means that your employment would be good, right? And you would become a prospect for income. Okay. So this is how income plays a major role in the economy, right? And this is a very basic way to understand this. Let us take loans. If we take loans, right? Now when you say loans, what do you basically understand? What are the sources of loans? So the sources of loans are scheduled commercial banks. What are scheduled commercial banks? Punjab National Bank, State Bank of India, okay, Bank of Baroda, etc. Right? Then there are NBFCs. What are these? Non-banking financial companies. Right? The source of the loan can also be government. How? Government securities, which are usually called as GSECs.
government security. Now, what happens in government security? So, we need to understand this. Non-banking financial companies, see, these are not banks. They provide loans to start businesses, and these are regular banks. These are the sources of the loans to a particular consumer. Now, if you look at, they are the providers. If you want to see that loans create what sort of economy, so there is this concept of debt burden. There is a concept of debt burden. Okay, more people taking loans, right? Which means that it is like debt is rising, and this creates a burden in the economy. Okay, now burden is also rising. Why? Because there is an issue of paying back. Now please understand, to pay back, it includes income. If you don't have income, then you will not be able to pay back, right? So it is a sort of balance that you need to maintain in the economy. And who will maintain that balance in the economy? So government will try to provide here and save the economy from falling down. Okay. Now, other way of investment is, as you can see, income, loans, gratuity offerings, equity markets. Now, you talk about equity markets. So you will find that there are domestic investors. भाई हमारी कंट्री में जो लोग पैसा लगाते हैं, कंपनीज के शेयर्स खरीदते हैं, और देर आर इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स. अब एक चीज़ मेरे को बताइए, अगर लोन ज़्यादा जा रहा है कंट्री में, तो ये बात सही है कि बर्डन ज़्यादा जा रहा है? ये बात सही है कि बर्डन बढ़ रहा है? लेकिन अगर कंट्री की जीडीपी पॉजिटिव जा रही है, राइट, कंट्री की जीडीपी अगर पॉजिटिव जा रही है और कंट्री में इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, तो ऐसे केस में आप क्या एक अनुमान बनाएंगे कंट्री की इकोनॉमी के बारे में? कैसी है? लोन भी लोग ज़्यादा ले रहे हैं, डेट बर्डन भी बढ़ रहा है, पर कंट्री की जीडीपी भी बढ़ रही है और इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ रहा है. अब आप बताइए कि आपको क्या समझ में आएगा ऐसी इकोनॉमी में? क्या आप ये कह पाएंगे कि इकोनॉमी खराब है? कैन यू से दैट दिस इकोनॉमी इज बैड? बताइए. लोग ज़्यादा लोन ले रहे हैं, चुकाना भी है, एम्प्लॉयमेंट का पता नहीं, गवर्नमेंट हायर एजुकेशन की तरफ प्रमोट कर रही है, स्कीम लेके आ रही है, लेकिन जीडीपी भी बढ़ रही है और लोग शेयर मार्केट्स और इसमें इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है. कैसी इकॉनमी है? क्या आप ये कह पाएंगे कि इकॉनमी खराब है? इकॉनमी नहीं खराब है. तो ऐसे में क्या होता है, इट इनवाइट्स कॉन्फिडेंस. ये कॉन्फिडेंस इकॉनमी में कौन लेके आ पाएगा? इट इनवाइट्स कॉन्फिडेंस. मतलब कि आप अपना ओपिनियन नहीं बना पा रहे हैं ऐसी इकॉनमी के लिए. ठीक है, अगर मान लीजिए आपको ऐसी कंट्री के अंदर पैसा लगाना है, तो आपका ओपिनियन नहीं बन पा रहा है इन 4 पैरामीटर से कि यार इकॉनमी में रिस्क लिया जाए कि नहीं लिया जाए. ठीक है, तो इसमें आप ऐसी इकॉनमी में कॉन्फिडेंस जो है आपका इन्वाइट करना पड़ेगा. तो ये कौन इन्वाइट करता है? ये अगेन गवर्नमेंट इन्वाइट करती है. अब सवाल आता है, गवर्नमेंट कैसे दिखाती है? गवर्नमेंट दिखाती है डेटा. ठीक है, जब गवर्नमेंट डेटा दिखाती है, तो डेटा दिखाने से क्या होता है? इट अट्रैक्ट्स इन्वेस्टमेंट्स. और इस इन्वेस्टमेंट के लिए जब भी होता है तो कहते हैं कि गवर्नमेंट जो कंट्री है वो प्रोस्पेक्टिव ग्रोथ की तरफ है, उसको आगे ग्रोथ ही मिलने वाली है. लेकिन ये एक बहुत बड़ी फॉली है, क्योंकि जब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जब बढ़ा है, उसके बढ़ने से इकोनॉमी में रिस्क बढ़ता है. ठीक है, और जब आपकी कंट्री में इनकम घट रही हो, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा हो, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा हो, उसके बाद सडनली अचानक से मार्केट में एक क्राइसिस आ जाती है, इकोनॉमी जो है वो फॉल कर जाती है. ये जो सिंपल इंसाइट है, यही इस पूरे एडिटोरियल में आपको समझाने की कोशिश की है. समझ गए? कितने लोगों ने एडिटोरियल पढ़ा है? ओके, गुड.
Very good. Very good. Very good. So now I think एक अलग सा कॉन्फिडेंस आ गया होगा, बिकॉज आपने ये सारी चीज़ें ही एसेस करने की कोशिश की होगी, और अगर आपको इतनी इंसाइट निकल के समझ में आ चुकी थी तो वेल डन, इट्स अ गुड जॉब. ठीक है, वेल डन. दैट इज़ वॉट वी हैड टू basically juice out. Now, if this is in logical reasoning section, then obviously, see, you need to be smart. You need to be smart to pick out the inference out of each question. Okay. Now, one question that I'm going to ask you is from this paragraph, from the first three paragraph, is that the lending surge in the economy is driven by wide offerings of loans to industries. Whether this statement, as per author, is correct or not. The lending surge in the economy is driven by wide offerings of loans to industries. As per the author, this statement is correct or not. And for this, you have to read only this part. Okay? False. That's correct. It's false. Why? So we'll try to read these paragraphs and we'll try to simply assess कि क्या हमें समझना है. स्टार्टिंग में जब ऑथर यहाँ पे स्टार्ट करता है तो रैपिड क्रेडिट ग्रोथ का मतलब ये है कि एक सायरन सॉन्ग चल रहा है, वार्निंग. इट ल्योर्स इकोनॉमीज विद प्रॉमिस ऑफ प्रॉस्पेरिटी ओनली टू लीड दम इनटू क्राइसिस. ईच फाइनेंशियल बूम इज फ्रेम्ड एज अ स्टोरी ऑफ फाइनेंशियल इनोवेशन एंड गुड टाइम्स. ये लाइन को ज़रा ध्यान से पढ़िए, वापस से पढ़िए. अब आपको इंग्लिश को कैसे पढ़ना है देखिए, सीखने की कोशिश करिएगा. ठीक है. ईच फाइनेंशियल, इसको एक मिनट और छोटा करें यार, ये ईच फाइनेंशियल बूम इज फ्रेम्ड एज अ स्टोरी ऑफ फाइनेंशियल इनोवेशन. फ्रेम्ड एज अ स्टोरी. कैच. क्या ये ट्रू है कि फाइनेंशियल इनोवेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऑथर यहाँ पे कह रहा है कि फाइनेंशियल इनोवेशन करेंगे, ऐसा दिखा रहे हैं. फाइनेंस में इनोवेशन करेंगे मतलब गवर्नमेंट देखो यूपीआई लेके आ रही है, डिजी इकॉनमी लेके आ रही है, डिजिटल साइड पे कर रही है. तो इसी तरीके से फाइनेंसेस के साइड पे भी इनोवेशन गवर्नमेंट कर रही है, राइट? तो वो स्टोरी है ऑथर के हिसाब से. बट ईच न्यू स्टोरी इज जस्ट विप्ड अप फ्रेंजी. इट इज, इन इकोनॉमिस्ट रॉबर्ट सिलर वर्ड्स, इर्रेशनल एक्सूबरेंस. मतलब फॉल्स कॉज और फॉल्स बिलीफ फॉर एक्साइटमेंट. वाह वाह पैसे आ रहे हैं इकोनॉमी में, क्रेडिट ग्रोथ है, राइट? सो दिस सेट्स एन अलार्म. ऑथर इज सेइंग दैट सेट्स एन अलार्म. ये कोई आपको सेलिब्रेट करने का ओकेजन नहीं है. As the economist Carmen Reinhardt and Kenneth Rogoff explained in their celebrated history of financial folly, governments and market participants dismiss previous crises that followed credit booms by invoking the mantra, "This time is different." Now, a question can be asked from this particular statement. See, it's not economy. A question can be simply asked from this statement. What could be the question? The question could be this, that every government accepts the failures of the previous regime.
This statement is true or not? Every government accepts the failure of previous regime as per the information given here. So if you'll use your common sense, you will naturally say no. इसमें पैसेज में देखने की भी ज़रूरत नहीं है. वैसे भी ये नो है और पैसेज में दिया हुआ है कि गवर्नमेंट्स और मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो हैं, पिछली जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस इकोनॉमी में आई रहती है उसको डिसमिस कर देते हैं. ठीक है, जब जब मार्केट में क्रेडिट बूम आया है तब तब इकोनॉमी में क्राइसिस आई है और हर बार सरकार जो है प्रीवियस क्राइसिस को डिनाई कर देती है और कहती है इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार आंकड़े कुछ और कह रहे हैं, हमारी में कोशिश कुछ और है, तो डेफिनेटली रिजल्ट आएंगे. गवर्नमेंट ऐसा ऑप्टिमिज्म जनरेट करने की कोशिश करती है इकोनॉमी में, राइट. इंडिया इज इन द मिड्स ऑफ अ सिमिलर फॉली ड्रिवन बाय पॉलिसी मेकर्स. पॉलिसी मेकर्स बोले तो गवर्नमेंट. वेडेड का मतलब होता है हिंज्ड, पकड़ के चल रहे हैं एकदम, होल्डेड अप, राइट, टू एन अनहिंज्ड हाइप अबाउट द कंट्रीज परफॉर्मेंस एंड प्रॉस्पेक्ट्स. हाइप बोल रहा है, कंट्री की जो परफॉर्मेंस है अच्छी चल रही है, इंडियन इकोनॉमी की जो ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट है वो बढ़िया चल रही है, उसको हाइप बोल रहा है यहाँ पे. और कह रहा है इंडिया भी एक ऐसी फॉली में है. दिस टाइम इज डिफरेंट. थीम टाउट्स इंडियाज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एज द कैटलिस्ट फॉर फाइनेंशियल इनोवेशन एंड इंक्लूजन. अब इंडिया गवर्नमेंट जो है डिजिटल इंडिया की तरफ फोकस करती है कि नहीं करती है, आप बताइए. ठीक है, मल्टीपल कंट्रीज आती हैं, उनको स्कैन यूपीआई दिखा रहे हैं. ठीक है, आरबीआई जो है कई तरह के यूपीआईज लेके आ रही है ना. एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस जो एपीआई है गवर्नमेंट ने ओपन कर दिया है, किसी कोई भी कंट्री इसको अपने कोड लेके अपने हिसाब से इसको अडॉप्ट कर सकती है. डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इंडियन गवर्नमेंट G20 में एक इम्पॉर्टेंट थीम थी जिसमें प्रमोट कर रही थी. तो गवर्नमेंट यहाँ पे फाइनेंस आपको दिखाई देगा लिखा हुआ है कि इंडिया का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कैटलिस्ट है फाइनेंशियल इनोवेशन और इंक्लूजन का. ऐसा बोल के गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट लेके आ रही है और ऑथर कह रहा है यही वो कह रहे हैं दिस टाइम इज डिफरेंट. हम तो देखिए इतना डिजिटल साइट पे इतना काम कर रहे हैं. आयरनिकली दिस लॉफ्टी नैरेटिव, आयरनिकली का मतलब सेइंग समथिंग एंड हैपनिंग अदरवाइज, राइट. ये जो लॉफ्टी नैरेटिव है has enabled a poorly regulated financial sector and consumers living beyond their means to generate a lending surge. फाइनेंशियल सेक्टर्स जो पुअरली रेगुलेटेड हैं, जो लोन दे रहे हैं, जो मार्केट में लोन बांट रहे हैं, और कंज्यूमर्स जो अपनी औकात से ज़्यादा खर्चा करने पे बिलीव करते हैं, उसकी वजह से इकॉनमी में एक लेंडिंग सर्ज है. मतलब बहुत ज़्यादा मार्केट में लोग पैसा उठा रहे हैं, इंक्रीज़ है. ऑथर यहाँ पे वार्न कर रहा है कि ये इन्वेस्टमेंट को आप इसको मत देखिए कि इन्वेस्टमेंट बढ़ रहे हैं, ये खतरनाक साइन है. बोथ इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक एनालिस्ट आर अपलॉडिंग दीज सर्च. इंटरनेशनली भी और डोमेस्टिक एनालिस्ट भी अपलॉड कर रहे हैं. तो आपको अगर क्लाड कंसोर्शियम एक स्टेटमेंट दे दे यहाँ पे आपसे पूछ दे ऐसे कि इंटरनेशनली इंडिया को इसके ग्रोथ उसके लिए वो किया जा रहा है, कंडेम किया जा रहा है, राइट. तो क्या आप अग्री करेंगे? बोथ इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक एनालिस्ट, इंटरनेशनली इंडिया को उसके जो ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट हैं उसके लिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं? नहीं, उसके लिए अप्रिशिएट कर रहे हैं. ठीक है, और वो भी रिलाई कर रहे हैं किस पे? लेंडिंग वाली बात पे. In December 2023, the board of directors of the IMF praised the performance of the Indian financial sector, citing robust growth in bank lending and low levels of non-performing assets. This is the vital information that IMF is relying on. Right. Similarly, the March 2024 review of this cheered a 20% increase in bank lending over the previous year, interpreting the particularly large increase in personal loans while lending to industry struggled as signaling bright prospects. Lending to industries struggled as signaling bright prospects. And now the question that I had asked is that the lending surge in the economy is driven by wide offerings of loans to industries. Now from this line, just a minute.
right? So the lending surge is increased in the economy driven by offerings of loans to industries. This statement is false. From we can conclude from this line, okay? Now you see what is the main problem that the author is highlighting. The author is highlighting that there are too many financial services providers with too few options to lend for productivity enhancement projects, which means जो इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं या जो लोन्स ऑफ़र किए जा रहे हैं वो इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे. Indeed, over time, lending opportunities have narrowed as the Indian corporate sector has reduced its investment GDP ratio and borrowing pace. अब देखिए कंपनी के साइड से इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो रहे हैं तो फिर ये कौन लोन ले रहा है. सवाल ये आता है कि ये लोन कौन ले रहा है ना. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैव देयरफॉर बीन अंडर ग्रेट प्रेशर टू जनरेट प्रॉफिट्स. ये तो ठीक बात है, लेकिन ये सवाल आता है कि अगर कंपनीज लोन नहीं ले रही हैं तो फिर ये लेंडिंग सेक्टर में बूम किस चीज़ की वजह से है, राइट? अब आपको ये दिखाई देगा कि यहाँ पे जो पर्सनल लोन्स हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं. देखिए, दिस सेलिब्रेशन ऑफ क्रेडिट ग्रोथ डिफ्लेक्ट्स अटेंशन, हमारा अटेंशन भटकाता है फ्रॉम द डीप रूटेड जॉब्स एंड ह्यूमन कैपिटल डेफिसिट. नाउ नोटिस द प्रॉब्लम दैट द ऑथर इज हाईलाइटिंग. इंडियन इकोनॉमी की प्रॉब्लम क्या है? डीप रूटेड जॉब्स एंड ह्यूमन कैपिटल का डेफिसिट. मतलब ना तो नौकरियां हैं ना ह्यूमन कैपिटल है. मतलब कहीं ना कहीं वो स्किल्स की भी बात कर रहा है कि स्किल बेस्ड आपके पास वर्कफोर्स नहीं है और इससे इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड होती है. स्किल बेस्ड वर्कफोर्स इज़ वेरी वाइटल फॉर द प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोनॉमी and it extends the hype into dangerous territory. The truth is that when lending expands, right, the financial sector looks in good health as new loans pay off old ones. But the house of cards collapses, मतलब जो पूरा आपका फितूर है, house of card collapses मतलब जो पूरी इकोनॉमी का आपका फितूर है, when lending slows and options for more loans to repay earlier obligations get shut. आपने इतना ज़्यादा लोन पे लोन ले लिया है कि आप अब उसको रीपे करने के लिए क्या बढ़ गया इकोनॉमी में, बर्डन बढ़ गया इकोनॉमी में और उतना पैसा जनरेट नहीं हो पा रहा है तो इकोनॉमी फिर स्लो हो जाती है. आईएमएफ जानता है ये हिस्ट्री बहुत अच्छे से कि बहुत जब घर के कर्ज़े इकोनॉमी में घरों के कर्ज़े बढ़ जाते हैं, राइट, तो बिज़नेस जो है और बिज़नेस अपनी स्पेंडिंग को कम कर दे. यानी कंपनीज़ देख रहे हैं आप, यहाँ पे बोल रहा है आपको कि कंपनीज़ जो हैं वो क्या कर रही हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स को नैरो डाउन कर दिया है, लेंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ को नैरो डाउन कर दी हो गई हैं क्योंकि इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर ने अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो कम कर दिया है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो एनालॉजी ड्रॉ कर रहा है इस तरीके से, राइट, कि व्हेन लेंडिंग स्लोज एंड ऑप्शंस फॉर मोर लोन्स टू रीपे अर्लियर ऑब्लिगेशंस गेट शट. IMF knows this history. Heavily indebted households and businesses sharply reduce spending to repay their debt, causing an economic crunch. सो अल्टीमेटली यू विल फाइंड दैट हमें जो हम लोग बेसिकली यहाँ पे जो पहले बात कर रहे थे कि जो इकनॉमी में लेंडिंग होती है, ठीक है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स होते हैं, वो सब होते हैं. लोन की हम जब बात कर रहे थे तो लोन में आपको ये पता चलेगा कि इंडस्ट्री अगर लोन ले रही है, इंडस्ट्री इज टेकिंग लोन, ठीक है, या कंपनी इज टेकिंग लोन, है ना, तो ये इकनॉमी के लिए हमेशा प्लस प्लस होता है, ठीक है. लेकिन अगर हाउस होल्ड लोन जो है वो बढ़ जाए, जिसको आप कह सकते हैं हाउस होल्ड या पर्सनल लोन, अगर बढ़ जाए इकोनॉमी में तो ये रिस्क होता है इकोनॉमी के लिए. हमको यहाँ से ये समझ में आता है, ऑथर भी यही इंडिकेट कर रहा है कि जो लोन टेकिंग एपेटाइट है वो ऐसे होगा. क्लियर है? तो आपको यहाँ पे इस एडिटोरियल में मल्टीपल जगह पे ऐसी बेसिक चीज़ें बताई हैं जिसको आपको समझने के लिए बस इंटरप्रिटेशन करना है. आपको बहुत बेसिक कॉमन सेंस यूज़ करना है क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग में ना इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स आपसे नहीं पूछेंगे, इकोनॉमी के बारे में नहीं पूछेंगे, वो आपसे कॉज इफ़ेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा पूछेंगे कि पूरे पैसेज में किस चीज़ को किससे रिलेट करके ये बताया जा रहा है. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको जॉब क्राइसिस के बारे में बात कर रहा है. अब देखिए कहीं ना कहीं पैसेज में उसने जॉब के बारे में तो कुछ बोला ही होगा, आगे देखने की कोशिश करते हैं. दिस डिस्ट्रेसिंग स्क्रिप्ट इज सेट टू रिपीट फॉर इंडिया स्पेशली बिकॉज ऑफ द फीवरिश एक्सपेंशन ऑफ
households lending at between 25 and 30% of year. Financial intermediaries have pushed their loans. Many lower and middle class households have viewed the funds as easy cash to make ends meet, to buy homes, gadgets, and cars, pay for education, and indulge in lifestyle spending, including vacations and elective medical procedures. इन सब चीज़ों के लिए आपको ईजिली क्या है, मार्केट में लोन मिल जा रहा है, तो लोग जो हैं, हाउस होल्ड्स जो हैं, वो ले रहे हैं, सब काम कर ले रहे हैं. अ हाउस होल्ड डेट बूम इज क्विंटेंशियसली बैड बूम. ऑथर यहाँ पे ये मान के चल रहा है. ठीक है, अगर लोन एक्टिविटी, तो आप सोच रहे हैं, आप एजम्पशन देखिए क्या है. ऑथर का एजम्पशन यही है कि अगर मार्केट में लोन लोग ज़्यादा ले रहे हैं, मार्केट में अगर लोन लोग ज़्यादा ले रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होगा और इकोनॉमी के लिए अच्छा है. ये ऑथर का एजम्पशन है यहाँ पे, है ना. इट डज़ नॉट ऐड टू प्रोडक्टिव कैपेसिटी बट इंस्टेड बिल्ड्स अप डोमेस्टिक प्राइसेस मेकिंग द कंट्री लेस कॉम्पिटिटिव. As economist Atif Mian and Amir Sufi report, the higher the household debt burden, the steeper the crash that follows. Again वही बात कि डेट बर्डन बढ़ेगा तो क्रैश होगी इकोनॉमी कुछ समय के बाद. Add to the bad credit boom, a stock market rising unmoved from weak corporate investment and anemic consumer spending, an overvalued exchange rate, and a tendency for Indian authorities to talk up dodgy data. And India presents a textbook example of the key elements that signal a looming financial crisis. मतलब ऑथर ने तो एकदम इंडियन इकोनॉमी की 12 बजा दी है. यहाँ पे कह रहा है कि सब कुछ गड़बड़ है. बैड क्रेडिट बूम है, स्टॉक मार्केट आपका स्टॉक मार्केट में आपको ग्रोथ दिखाई दे रही है, लेकिन कॉरपोरेट इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में कम हो रहा है. कंज्यूमर्स जो हैं उनकी स्पेंडिंग भी कम हो रही है. ओवर वैल्यूड एक्सचेंज रेट है, राइट, इंडिया की रूपी फॉल कर रहा है. एंड अ टेंडेंसी फॉर इंडियन अथॉरिटीज़ टू टॉक अप डॉजी डेटा, मतलब आपके सामने डेटा भी नहीं बताते, डेटा छुपाते हैं. गवर्नमेंट भी प्रॉपर डेटा नहीं देती. द फाइनेंशियल क्राइसिस विल कॉज नॉट जस्ट इकोनॉमिक पेन बट विल ऑल्सो डिग्रेड द इकोनॉमीज लॉन्ग टर्म वेलबींग. तो ऑथर यहाँ पे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट की बात कर रहा है इकोनॉमी में. ये आपको समझना पड़ेगा कि ऑथर के हिसाब से ऐसी चीज़ों का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ता है इकोनॉमी पे. वाइल द 2 टर्म्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट हैव ब्रॉट अप to this moment, 3 decades of economy and financial policy are culpable. So author is not only blaming the Modi government, rather author is blaming the past 30 years history of India. Now where the author is indicating? The author is definitely indicating the time period between 1990 to 1995, and that is when the liberalization, privatization, globalization reforms have taken place in the economy. Now these reforms are considered to be very, very important, very vital. The nature of Indian economy changed after that. So author is trying to also put a blame on this. Author is saying that by that reforms, you were not able to generate job-rich manufacturing growth. So manufacturing side पे आप job जो है वो नहीं generate कर पाए. Successive policy makers have pushed the financial services industry to raise headline GDP growth rates in the last decade. The financial sector has contributed over a quarter of the GDP growth. Now the financial sector means वही बैंक्स, जो लोग भी ऑर्गेनाइज तरीके से आपको पैसा देते हैं, राइट. ग्रोथ नहीं है इकोनॉमी में, मतलब जॉब रिच मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल सेक्टर 1/4 ऑफ द जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है. इसीलिए ऑथर ये टर्म यूज़ करता है, यहाँ पे लिखा है अ केओटिक फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री. तो फाइनेंशियल सर्विसेज में ग्रोथ देखी जा रही है, लेकिन ये केओटिक इंडस्ट्री है. India's styled liberalization has promoted a large and chaotic financial service industry. At the top are 30 odd large providers, which include scheduled commercial banks, major non-banking financial institutions, all with a history of rogue behavior. Alongside thousands of smaller players, including fly-by-night NBFCs and new fintechs operate in dubious ways. So it is not टॉकिंग अबाउट बैंक्स, बट ऑथर का पूरा फोकस देखिए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज की तरफ एक रिस्क फैक्टर दिखा रहा है. अब ये चीज़ आपको इन्फर में चली जाएगी, ये इन्फ्रेंस हो गया यहाँ से कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज 2 बार आ गए यहाँ पे, और ऑथर उनके लिए एक रिस्क बता रहा है. बैंक्स के लिए ऑथर ज़्यादा कुछ नहीं कह रहा है. प्रॉब्लम सिंपल है. फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन 1991, देखिए आ गई LPG रिफॉर्म्स की बात. द सर्च फॉर ईजी प्रॉफिट्स स्पॉन्ड स्कैम्स. अब क्लार्ट पूछेगा कि ये स्कैम्स क्यों हो रहे थे इकोनॉमी में.
लिबरलाइजेशन के टाइम पे स्कैम्स क्यों हो रहे थे? लिबरलाइजेशन के टाइम पे स्कैम्स इसलिए हो रहे थे क्योंकि ल्योर कर लिया जा रहा था पब्लिक को इन्वेस्टमेंट कराने के लिए, इजी प्रॉफिट दिखा दिखा के। लिबरलाइजेशन से उसका कैसा रिलेशन है? तो लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि जब गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल ना करे, लिबरलाइजेशन का लीगल सेंस भी इकोनॉमिक सेंस भी यही होता है कि गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत ज़्यादा ना रहे इंडस्ट्रीज़ पे, बैंक्स पे। तो 1991 के बाद इजी प्रॉफिट्स की वजह से स्कैम्स भी ज़्यादा हुए, बट स्पेशली आफ्टर कोविड-19 फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स रीडायरेक्टेड लेंडिंग टूवर्ड्स हाउस होल्ड्स eager to borrow in lieu of stagnant incomes. Now, Clark will again ask you that after all, tell us why household sector is trying to buy more loans. ये घर वाले, आप देखिए आपके घर में सब कुछ बहुत कुछ EMI से चल रहा है, बहुत कुछ EMI से चल रहा है, छोटी मोटी चीज़ें EMI से चल रही हैं, राइट, है ना? तो ये जो EMI से सिस्टम चल रहा है, ये हाउस होल्ड की क्या है, लेंडिंग है। और क्यों हो रही है? क्योंकि ऑथर कह रहा है कि इनकम जो है वो स्टैग्नेंट हो गई है, इनकम में ग्रोथ नहीं है। अगेन देखिए पेन पॉइंट, ऑथर क्या कह रहा है कि इनकम ग्रोथ ज़रूरी है, इनकम ग्रोथ इकोनॉमी में होनी चाहिए अगर इकोनॉमी को बचाना है, बट ऐसा नहीं हो पा रहा है। द न्यूली एमर्जेंट फिनटेक्स लेट दिस चेंज बाय ऑफरिंग लोन्स टू डेस्परेट हाउस होल्ड्स एट एक्सटॉर्शनरी इंटरेस्ट रेट्स। अब एक्सटॉर्शनरी इंटरेस्ट रेट्स में ये किसको टारगेट कर रहा है? फिनटेक्स को टारगेट कर रहा है। आपने बहुत सारे ऐसे ऐप्स देखे होंगे जो बोलते हैं कि 50,000 तक का लोन दे देंगे आपको बिना किसी कोलैटरल के, ऐप डाउनलोड करिए। एक्चुअली में पैसा आ जाता है, लेकिन उसका जो पे बैक होता है वो आपके बैंक अकाउंट से कनेक्ट कर लेते हैं, ऑटो डेबिट होगा आपके बैंक में, जैसे ही आप पैसा डालेंगे वो कट जाएगा। तो उसमें जो वो इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं आपको, वो बहुत ज़्यादा होता है। बैंक देती है लोन 10% पे, 8% पे, 11% पे, ठीक है, वो आपको लोन देंगे 20%, 25% पे। तो एग्जॉर्बिटेड इंटरेस्ट रेट पे फिनटेक्स जो है लोन्स देते हैं डेस्परेट हाउस होल्ड्स को। अ न्यू सेट ऑफ स्कैमर्स प्रेड ऑन द गलिबल। मतलब देखिए इससे आपको कह रहा है कि स्कैम भी प्रमोट हो रहा है। येट सम बोरोवर्स बिकेम एडिक्टेड टू सच लोन्स। अब आपको ये सब क्या फैक्टर्स बता रहा है? इकोनॉमी में रिस्क फैक्टर्स बता रहा है कि लोग पैसा ले रहे हैं, पे बैक नहीं करेंगे, ये पैसा गायब हो जा रहा है, इवैपोरेट हो जाएगा। टुडे अ डेंजरसली ग्रोइंग शेयर अप्रोचिंग अ क्वार्टर ऑफ हाउस होल्ड लोन इज अनसिक्योर्ड बैक्ड बाय नो कोलैटरल। अब ये अगेन यहाँ पे क्या आपको समझ में आता है? ये समझ में आता है कि अगर लोन कोलैटरल के साथ लिया गया, कोलैटरल क्या होता है? जब भी तुम बैंक से लोन लेने जाओ तो वो बोलेगा अपने ज़मीन के पेपर दे दो, है ना, अपने गहनों का अकाउंट बता दो, सोने का जो कुछ है वो जेवर रख दो। कोलैटरल, अगर तुम्हारे पैसे तुम नहीं चुका पाए तो ये कोलैटरल हम कोलैटरल बेच के अपना लोन रिकवर कर लेंगे। रिस्क नहीं है, बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होगा। लेकिन जो आपको फिनटेक्स लोन दे रहे हैं उसमें कोई कोलैटरल ही नहीं है। और अगर ऐसा लेंडिंग बढ़ रहा है, वो भी हाउस होल्ड साइड पे, तो ये दिक्कत की बात है। और कह रहा है 1/4 ऑफ द हाउस होल्ड लोन्स, यानी जितने भी लोन लिए जा रहे हैं घर में, उसमें से 1/4 ऐसे लोन्स हैं जिसमें कोई कोलैटरल नहीं है। द पोस्टर चाइल्ड फॉर अनसिक्योर्ड कंज्यूमर बोरोइंग इज क्रेडिट कार्ड डेट। अब ऑथर कह रहा है ये मेन पॉइंट कैसे है कि क्रेडिट कार्ड का डेट आप देख लीजिए, भारत में कितने लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे ऑथर एकदम प्रिसाइज हो गया है। तो मेन पॉइंट ये है कि ऑथर क्रेडिट कार्ड की जो संख्या है उसको वो बढ़ता हुआ देख रहा है, और उसके बेसिस पे आपको ये बता रहा है कि जो फिनटेक कंपनीज़ हैं वो अपना क्रेडिट कार्ड इशू कर रही हैं। और लोग जो हैं, क्योंकि ये क्रेडिट कार्ड है, आपको ऑलरेडी पैसा मिल जाएगा, आपको कुछ थोड़े थोड़े प्रीमियम पर मंथ देने हैं, वो भी कुछ समय के बाद चालू होता है। 5 लाख तक का क्रेडिट कार्ड आपको ईजिली मिल जाता है। तो इससे क्या हो रहा है, कोई कोलैटरल नहीं है, लेकिन फिनटेक की वजह से लोग क्रेडिट कार्ड्स पे ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं और इकोनॉमी एक अच्छे इन्वेस्टमेंट की तरफ देखी जा रही है। बट ऑथर का वार्निंग साइन ये है कि ऐसे पैसे में कोई कोलैटरल नहीं है। अगर मान लो क्रेडिट कार्ड का खर्चा आदमी ने कर दिया, फिनटेक ने जिसने उसको क्रेडिट कार्ड जिस कंपनी ने इशू किया था उसने उसको 5 लाख तक की लिमिट दी थी, उसने 5 लाख रुपए उड़ा दिए और वो चुका नहीं पाया कंपनी में वापस, तो फिर क्या होगा? ऑथर यहाँ पे ये बात को हाईलाइट कर रहा है, बट बहुत डिफरेंट तरीके से आपके सामने ये बात रख रहा है। समझ में आ रहा है क्या?
फॉलोइंग इट और नॉट? नहीं आ रहा है समझ में? ठीक है, सो अब एक काम करिए, आप रीड कर लीजिए ये 2 पैराग्राफ ज़रा सा एक बार। बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं इकोनॉमिक एडिटोरियल्स, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं, बहुत इजी होते हैं। समझ में आ गया रिस्क क्या है इकोनॉमी में? रोहन के बारे में बता रहा है, घर में आपको टीवी खरीद लिया, मोबाइल खरीद लिया क्रेडिट कार्ड से। इवेंचुअली ही टुक अ चीपर लोन टू पे ऑफ हिज क्रेडिट कार्ड ड्यूज। मल्टीप्लाई द रोहन्स, मतलब उसने चीपर लोन ले लिया, बैंक से लोन ले लिया। मल्टीप्लाई द रोहन्स मनी फोल्ड एंड यू हैव अ मैक्रो इकोनॉमिक थ्रेड पॉइंट। इंडियन हाउस होल्ड डेट एट 40% ऑफ GDP, ओ माई गॉड, इज़ लो बाई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, बट हाउस होल्ड डेट सर्विस टू इनकम रेशियो एट 12% इज़ अमंग द हाइएस्ट इन द वर्ल्ड। मतलब कि भैया अपनी इनकम का 12% लोग लोन देने में ही, अपनी इनकम का 12% लोग लोन देने में ही चुका रहे हैं, ख़त्म कर दे रहे हैं। ये है आपका डेट सर्विस टू इनकम रेशियो, राइट। पूरी दुनिया में ये सबसे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स, लोन जो देने के इंटरेस्ट रेट्स हैं वो ज़्यादा हैं, और जो लोन्स हैं वो शॉर्ट ड्यूरेशन के हैं, मतलब 5 साल, 7 साल, 3 साल, 1 साल, राइट। Indeed, the Indian household debt service to service ratio is alarmingly similar to that in the United States and Spain just before their 2008 financial crisis. When high household debt service burdens precipitated major economic downturns. भैया तैयार हो जाओ, ऑथर के हिसाब से तो ये है कि अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें, आपकी इकॉनमी गिरने वाली है। ठीक है, समझ में आया तुमको? ऐसा लग रहा है क्या? व्हाट डू यू थिंक? क्या आप ऑथर की बात से सहमत हैं? आपको ऐसा लगता है इकोनॉमी गिर जाएगी इंडिया की? सर हमें कुछ नहीं लगता है, हैं? जेब में 1 रुपये है नहीं, इकोनॉमी पे ओपिनियन पूछ रहे हैं आप। आई एब्सटेन फ्रॉम सेइंग एनीथिंग। अच्छा लेकिन ये आर्टिकल जो है इसमें क्या कॉम्प्लिकेटेड लगा आपको, बताइए। अच्छा सर खाने पे ध्यान दे रहा हूँ अभी। यहाँ मास्टर मर मर के गला सुखा सुखा के बड़बड़ा रहा है, हैं? 9:30 बजे, हैं? ये खाए रहे हैं वहाँ पे। अपनी कोचिंग का भी नाम कर दूं स्लीपी क्लासेस, रात को चलाते हैं 1 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक, जहाँ पे मास्टर भी पता नहीं क्या बोल रहा है नींद में आधे, और ये सब भी सो रहे हैं। स्लीपी क्लासेस, व्हाट डू यू थिंक सर? आउल मिनी, समझ गए? ये देखो इकोनॉमी का आर्टिकल इतना डिफिकल्ट नहीं होता है यार। इंडियन हाउस होल्ड डेट के बारे में आपको सिचुएशन बता रहा है। सोल्यूशन देखिए क्या बता रहा है। 2024 के जनरल इलेक्शन रिजल्ट्स माइट डिफ्यूज द इंडियन हाई बट अ सडन स्टॉप इन इंडियन क्रेडिट को ट्रिगर अ क्राइसिस। अब ऑथर ये कह रहा है क्या, इंडिया का ऑथर ये सजेस्ट कर रहा है कि जो इंडिया में लेंडिंग हो रही है उसको तुरंत रोक देना चाहिए? नहीं। प्रिवेंटिंग द क्राइसिस रिक्वायर्स सर्जिकली डाउनसाइजिंग द फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री टू बेटर मैच लेंडिंग कैपेसिटी एंड प्रोडक्टिव बोरोइंग नीड्स। प्रोडक्टिव नीड्स, जो पैसा मनी, बिजनेस ग्रोथ, बिजनेस बनाने के लिए ऐसा लोन ले रहे हैं आप क्योंकि आपको दुकान लगानी है, तो भैया उससे इकोनॉमी में ग्रो ही होगा, राइट। सामान खरीदने के लिए आप लोन ले रहे हैं तो वो प्रोडक्टिव नहीं होगा। प्रोडक्टिव बोरोइंग नीड्स को फुलफिल करिए, ठीक है। आप एक्सपोर्ट्स को एक्सपैंड करिए। एक्सपोर्ट्स बढ़ाने से क्या होगा? आपका रुपी जो है वो मजबूत होगा, आपका रुपी जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में मजबूत होगा, अगेंस्ट द डॉलर वो ग्रो करेगा और कुशन डाउनटर्न करेगा व्हेन इट कम्स।
History makes clear that rapid credit growth and an overhauled exchange rate are lethal combinations. अब देखिए ऑथर ने सोल्यूशन क्या दिया है. Rapid credit growth and overhauled exchange rate are lethal combinations. Right? So thereby author is trying to suggest that you need to reduce the number of financial services uh, who are offering loans, and loans should be given to productive sites. But policy change is unlikely, so author is not really positive whether the government is going to change any of that. In opposition to John Robinson's dictum that finance must follow growth, Indian policymakers have committed themselves to the notion that finance will spur growth and help overcome the country's severe developmental handicaps in human capital and other public goods. Policymakers are also committed to a strong exchange rate as a metric of the nation's virility. Meanwhile, as the risks of a financial crisis grow, an acute job shortage persists, reflected most poignantly in a catastrophic regression of the workforce back to agriculture. So, author is telling you that people are leaving the jobs, going back to agriculture. And trust me, yes, there are people of my own age who are planning to buy some piece of farms and start agriculture. Literally, they have good wealth, so they are planning to buy खेत कि भैया वहीं पे फार्म हाउस बनाएंगे, बिजली तो अब तक हर गांव में आ ही रही है, खेती करेंगे. सो बड़े बड़े लोग एग्रीकल्चर की तरफ वापस जा रहे हैं. ये आपको एक रिस्क बता रहा है. India's heavily credit reliant economy strategy is akin to a car speeding toward a cliff's edge without brakes. Sadly, the nation's financial and policy elite has adopted a see no evil attitude. मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ता, अलबत्ता चल रहा है, बढ़िया चल रहा है. कार जा रही है, गड्ढे में गिर जाएगी, गाड़ी में कोई ब्रेक नहीं लगा है. आफ्टर ऑल, द वीक एंड वल्नरेबल विल बियर द बर्डन ऑफ द क्राइसिस as the dire employment situation becomes worse and stark inequalities become starker. So author is in the last pointing out two things. First, that there is no employment in the economy. Second, that economic inequality is widening. The rich are getting richer, poor are getting poorer. And you can corroborate this piece of information with current affairs that we have discussed about gender inequality, income inequality report that was issued by one of the private organizations, right? And we had read editorials on that part. So this is one pain point that I wanted to explain you, and that is where I would say be very patient while you're going through all of these editorials, because it is the only thing that will help you in, improving comprehension. You need to invest time into reading these things. Push yourself in tough waters, and then it will naturally improve your comprehension.
अब इस पूरे एडिटोरियल में ये जो छोटा वाला एडिटोरियल है काफ़ी बढ़िया इंटरेस्टिंग एडिटोरियल था. आपने पढ़ा था? हाउ मेनी ऑफ यू हैव रेड दिस? आई थिंक द स्पीड with which I had scrolled, you must have got the indication that this is the speed we usually will keep while reading the passage for the first time. Skimming through the passage, reading it at a very fast pace. The main point here that author is discussing is with respect to the ban of a film, right? The decision of the Karnataka government वेयर ऑफ हिंदी फिल्म हमारे 12 जो है, और उसको बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी क्या कर दिया, राइट? इनिशियली स्टेट द हमारे 12 हैज़ लिफ्टेड द बैन. तो बॉम्बे महाराष्ट्र ने उस हमारे 12 का जो बैन है वो हटा दिया है, और कर्नाटका गवर्नमेंट का जो डिसीजन है उसने इस मूवी को बैन कर दिया है. महाराष्ट्र में ये बैन हटा दिया गया है, राइट? अब मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट ये है कि अगर सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन में इट्स ऑब्जर्वेशन दैट अलाउिंग एन इंडिविजुअल टू स्टॉल द रिलीज ऑफ अ सर्टिफाइड फिल्म would encourage film producers being held to ransom is consistent with judicial precedents. Once it is certified by the Central Board of Film Certification, presumably after proper scrutiny, its suitability for public viewing, there ought to be no scope for second opinion by law enforcement authority. किसी सेकेंड ओपिनियन की ज़रूरत नहीं है. अगर सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने उस मूवी को अप्रूव कर दिया था तो उसको आप गवर्नमेंट बैन कर दे रही है, स्टेट गवर्नमेंट्स बैन कर दे रही हैं, उसको हाई कोर्ट्स बैन कर दे रहे हैं. ये अनकॉल्ड फॉर है, ये सेकेंड स्क्रूटिनी रिक्वायर्ड ही नहीं है. लेकिन ऑथर लास्ट में कहता है कि जो हमारे 12 का के ऊपर जो ये कंट्रोवर्सी पूरी चल रही है, अगर आप उसको एक्चुअली में देखेंगे तो उसमें सर्टेन डिग्री ऑफ ट्रूथ है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बात हेल्ड करी है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को सिर्फ आप इसलिए नहीं सप्रेस कर सकते कि भैया लोग प्रोटेस्ट करेंगे, ठीक है, थ्रेट है, वायलेंस हो सकता है. कोर्ट ने 1989 में अपने एस रंगराजन वर्सेस पी जगजीवन राम ओरे ओरू गामत हिले के मैटर में सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ कही थी, राइट? लेकिन ऑथर अब अपना ओपिनियन दे रहा है यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ में कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का खुले होने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी तरह का कंटेंट जो डिस्टेस्टफुल हो, ऑब्नॉक्शियस हो, वाइल प्रोपागेंडा हो, उसको प्रमोट करें. अभी जो करंट मूवी है स्कैनर के अंदर, वहाँ पे ये रीज़न टू बिलीव है कि जो क्रिटिसिज्म है वो जस्टिफाइड है, क्योंकि उस मूवी में खुद कम्युनल ओवरटोन्स बहुत ज़्यादा है. उसका टाइटल ही कम्युनल ओवरटोन है. इट्स पोस्टर्स एंड साइनॉप्सिस सजेस्ट कि फिल्म जो है सेक्टेरियन एलिगेशंस लगा रहा है मुस्लिम कम्युनिटी पे, कह रहा है कि वो रिस्पॉन्सिबल है पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए, और उनके मेन जो हैं वो वुमेन को फोर्स करते हैं टू बियर मोर चिल्ड्रन, राइट? और उनकी हेल्थ और वेलबींग का ध्यान नहीं रखते, ऐसा मूवी में दिखा रहे हैं. द फिल्म के प्रोपोनेंट जो हैं मे क्लेम इट इज़ अबाउट स्प्रेडिंग अवेयरनेस ऑन पॉपुलेशन कंट्रोल. अच्छा, फिल्म के जो निर्माता निर्देशक लोग हैं वो क्या कह रहे हैं कि वो पॉपुलेशन कंट्रोल पे अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को. एंड वॉचिंग अ फिल्म मे डिस्पेल सच एन इम्प्रेशन. हाउएवर इट कैन नॉट बी डिनाइड दैट द कॉन्टेम्प्रेरी फिल्म मेकिंग हैज़ मेड स्टीरियोटाइपिंग द मुस्लिम कम्युनिटी अ सिग्निफिकेंट ट्रेंड. तो ऑथर यहाँ पे फिल्म मेकिंग, इंटायर करंट फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री को ब्लेम करके कह रहा है कि यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी का स्टीरियोटाइपिंग किया जा रहा है. Any film that gives prominence to the claim that members of the community have more children must be aimed at pandering to communal sections and the political establishment that encourages them. Right? Author is trying to say कि ऐसा अगर कर रहे हैं तो definitely communal angle है. If the country is to be free and open society, there is no need to suppress any point of view. At the same time, it must also develop the wherewithal to counter sectarian propaganda. Sectarian propaganda मतलब वही जो कम्युनल हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं और मल्टीपल्स ग्रुप्स की बात करते हैं, विद फैक्ट्स एंड विदाउट रिजॉर्ट टू अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स. सो बड़ा न्यूट्रल सा एडिटोरियल है. पर तुमको पता है ये वाले एडिटोरियल्स, ओपिनियंस वाले एडिटोरियल्स आते हैं क्लैट में, इसीलिए मैं कहता हूँ कि छोटे वाले एडिटोरियल्स पे हमेशा ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि यही पैसेजेस डायरेक्ट होते हैं क्लैट में. ठीक है, जो भी अभी तक पास्ट ईयर पेपर का आप वीडियो देखिए, मैंने डाला हुआ है उसमें आपको, जिसमें बताया हुआ है इसमें ओपिनियंस, डायरेक्ट ओपिनियंस पूछा है. ओपिनियंस कॉलम सेक्शन बहुत कम आता है. कॉलम सेक्शन जो आपको राइट साइड में दिखता है वो कॉलम सेक्शन होता है. ये द हिंदू का ओपिनियन सेक्शन है. ठीक है, तो ये एडिटोरियल पूरा, ये 300 वर्ड्स होते हैं, 300-350 वर्ड्स अपने आप में होते हैं, और ये
जैसे मैंने आपको बताया कि क्लैट में एक चीज़ आप नोटिस करिएगा, आई विल टेल यू दिस थिंग इन क्लैट, वन थिंग आई विल टेल यू, द ट्रिक पार्ट। ओके, क्लैट में अगर पैसेज आएगा तो ट्रिक क्या है पैसेज सॉल्विंग की? बेस्ट पार्ट ये रहता है, आपका जो मॉक आता है ना, आप लोग के जो मॉक्स आते हैं वो बड़े अजीब से होते हैं, क्योंकि उनमें कोई प्रॉपर स्टार्ट और प्रॉपर कंक्लूजन नहीं होता है। लेकिन पैसेज सॉल्विंग की ट्रिक पार्ट में आपको क्लैट में बताऊं कि वो परफेक्ट पैसेज होगा एक। इट वुड बी अ परफेक्ट पैसेज। उसका अपना एक इंट्रोडक्शन होगा, उसकी अपनी एक मेन बॉडी होगी जिसमें वो अराउंड 5 से 10 लाइन बीच में खाएगा, और उसका एक अपना प्रॉपर कंक्लूजन होगा। ठीक है, और जो पैसेज में रेकरिंग वर्ड्स रहते हैं, बार बार वर्ड्स, अगर कोई वर्ड्स आ रहे हैं, कोई टर्म आ रहा है, तो वो फोकस होता है ऑथर का। ठीक है, वो फोकस होता है ऑथर का। अब इस पूरे ऑथर में, इस पूरे पैसेज में अगर आप बोलें कि टोन क्या निकल के आ रही है, जो हमने अभी ये वाला पढ़ा कि टोन कैसी है, तो देखिए टोन में ऑथर क्या कह रहा है। बार बार आपको किस जगह पे हाईलाइट कर रहा था ऊपर वाले आर्टिकल में, कम्युनल ओवर टोन वाले आर्टिकल में आपको वर्ड ऑफ कॉशन दे रहा था। तो टोन क्या है? कॉशनरी टोन है, कॉशन दे रहा है, वर्ड ऑफ कॉशन दे रहा है कि एक तरफ आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को क्या करना है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को प्रमोट करना है। ठीक है, उसको रोकना नहीं है। दूसरी तरफ आपको जो सेक्टेरियन प्रोपेगेंडा है उस पर चेक रखना है और उसको कर्ब करना है। तो ये कॉशनरी आपको पाथ दे रहा है पॉलिसी मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्लैट के पैसेज सॉल्विंग में आपको ये पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग का जो रहेगा वो इंट्रोडक्शन रहेगा, आखिरी के 4-5 लाइन में कंक्लूजन रहेगा, और ये मेन बॉडी रहेगी। तो जो आपको क्वेश्चंस आते हैं वो एक क्वेश्चन इंट्रोडक्शन साइड से होगा, एक क्वेश्चन कंक्लूजन साइड से होगा, और आपको 3 क्वेश्चन मेन बॉडी से मिलेंगे। आप ये चीज़, ये ट्रेंड जो ये एनालिसिस है, ये आप उठा के देख लीजिएगा। ठीक है, आप पास्ट ईयर पेपर जब सॉल्व करेंगे तो आपको ये चीज़ दिखाई देगी कि जो ऑप्शंस होते हैं, जो करेक्ट ऑप्शंस होते हैं, करेक्ट ऑप्शंस वो पैसेज में कहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, आप देखिएगा जाके। ये कोई निंजा ट्रिक नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन से बता रहा हूँ। तो आपको दिखाई देगा कि हाँ, जो क्वेश्चंस की संख्या है वो इंट्रोडक्शन पार्ट से एक क्वेश्चन आएगा, कंक्लूजन पार्ट से, लास्ट पार्ट से एक क्वेश्चन आएगा, और मेन बॉडी से आपको 2-3 सवाल वो टिकाएंगे। तो जब आपको ये पता रहता है तो आप ऐसे आर्टिकल्स को बहुत क्लोजली रीड करिए। देखिए उसने पहले ही आपको सेंट्रल CBFC के रोल के बारे में बता दिया। उसके बाद इस पैसेज में CBFC के बारे में यहाँ पे बताया उसने, और करेंटली आपको ये सिचुएशन बताया है। ये इंट्रोडक्शन इंट्रोड्यूस कर रहा है कि गवर्नमेंट और हाई कोर्ट्स जो हैं इंटरफेयर कर रहे हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के साथ। तो यहाँ पे इंटरफेरेंस जो है वो आपको बता रहा है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे। फिर यहाँ पे आपको एक अपना मेन क्रिटिसिज्म दे रहा है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के बोलने के बाद बैन नहीं लगना चाहिए, राइट। उसके बाद यहाँ पे आपको सुप्रीम कोर्ट का वास्ता दे के बता रहा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, उसको प्रोटेक्ट होना है, राइट। लास्ट में अब ऑथर यहाँ पे आप आएंगे तो ऑथर एक अपना आर्ग्यूमेंट नंबर 1 दे रहा है, अपना पहला आर्ग्यूमेंट दे रहा है कि यहाँ पे आर्ग्यूमेंट क्या कह रहा है कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अलावा डिस्टेसफुल, ऑब्नॉक्शियस और वाइल्ड प्रोपेगेंडा को भी चेक करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको तो आर्ग्यूमेंट नंबर 2 दे रहा है। आर्ग्यूमेंट नंबर 2 क्या है? जहाँ पे आपको कॉशनरी प्रिंसिपल के बारे में बता रहा है। कॉशनरी प्रिंसिपल क्या है? व्हाट इज कॉशनरी प्रिंसिपल हियर? दैट वन कम्युनिटी, वन Muslim community is being stereotyped. And at the last, what is it is been talking about? At the last, what it is talking about? It is talking about finally conclusion. So this is how you will find questions also from these aspects. Okay, so this is one trick in critical reasoning, in logical reasoning, that will play a huge role when you will appear in your CLAT examination, and I can bet on it because it's very simple कि आपके मॉक्स जो हैं वो ये चीज़ों को फॉलो नहीं करते, बट पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस विल इंडिकेट दिस टू यू। पास्ट ईयर पेपर का आप प्रॉपर एनालिसिस करेंगे तो आपको ये चीज़ मिलेगी। सो वंस यू नो दिस ट्रिक, ट्राई टू रीड द न्यूज़पेपर इन दैट रिगार्ड। ओके,
try to recover the newspaper in that regard. Now, अच्छा मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो बिजनेस वाले हैं अगर आप इनको नहीं रीड कर पा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट लेकिन वर्ल्ड वालों को प्लीज़ डेफिनेटली रीड करिएगा, वर्ल्ड वाले को प्लीज़ रीड करिएगा. अभी हंटर बाइडन कन्विक्टेड ऑफ ऑल द चार्जेस इन द गन केस, इसको आपको बस जनरली ओवरव्यू करना है, राइट. नाउ प्लांटेशन वर्कर्स का प्रॉब्लम श्रीलंका में क्या है. अब देखिए, इंडिया श्रीलंका जो है एक इम्पॉर्टेंट थीम बन के चल रहा है इस साल, तो आपको इस आर्टिकल को वैसे भी रीड कर लेना चाहिए. जस्ट यू हैव टू रीड क्विकली. अभी कैसे, देखिए यहाँ पे है रबर बेस्ड एक्सपोर्ट्स, ठीक है, रबर बेस्ड एक्सपोर्ट्स. अब रबर के बारे में, प्लांटेशन का की है, रबर की प्लांटेशन है, उनके बारे में बात कर रहा है. टी और रबर प्लांटेशन के बारे में बात कर रहा है श्रीलंका में. तो अब आप सोचोगे यार टी और रबर प्लांटेशन के वर्कर्स के बारे में क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनका अपना एक कल्चरल रिलेशन है ना, तो वो श्रीलंका की क्राइसिस के लिए इंपॉर्टेंट है. फॉलोइंग दिस, जस्ट गिव मी अ मिनट. So this is how you are going to cover your newspaper, and I have shared also this most important articles, right, of text and context. In this, very interesting is this Cassini. With bad news from Cassini is dark matter's main rival theory dead. So this Cassini project, Cassini mission, right? Actually, you will find here there is this term which is mentioned, Milgromian dynamics or MOND, proposed by Israeli physicist Mordechai Milgrom in 1982. This is one theory which is proposed right now, which is telling us that dark matters, dark energy do not exist. Actually, galaxies क्या है, rapidly rotate कर रही हैं और expand कर रही हैं, तो उसके अंदर ग्रेविटी एक एनर्जी है, ग्रेविटी के अगेंस्ट में कहते हैं डार्क एनर्जी भी एक है, ठीक है. तो उसके ऊपर कसीनी मिशन की कुछ फाइंडिंग्स हैं जो आपको रीड करना चाहिए. अगेन मैं कहूँगा कि इस पर पैसेज आएगा नहीं, ये अपने कहते हैं ना कुछ मल्टीपल टाइप के अलग अलग टाइप के आर्टिकल्स जो होते हैं वो अपने दिमाग को खोलते हैं. जैसे अब उसके बाद है आपका टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में इस पैलेस्टीन का फ्यूचर पॉसिबल, ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, इसको आप डेफिनेटली रीड करिएगा. आपका इज़राइल पैलेस्टीन का जो सारा इशू है वो एक ही आर्टिकल कवर कर देगा. ये वाला FAQ, ये बहुत अच्छा FAQ आया था. अगर आपने रीड किया, कितने लोगों ने रीड किया है ये? वेरी गुड. इस पे नोट्स बनाने वाला है, ठीक है. ये FAQ जो है ये नोट मेकिंग वाला है, इससे आप अपने नोट्स बना लीजिएगा कंप्लीट. बहुत बेहतरीन आर्टिकल था. अच्छा, ओके, वेल डन. अब वाई डज इंडिया प्रोड्यूस कोल, ये आपको बस रीड करना है, इसमें आपको कुछ नोट मेकिंग नहीं करनी है, राइट. वाई इज़ देयर अ फ्रेश रोन मुल्ला पेरियार, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है. मुल्ला पेरियार डैम वाला तो हमने आपको ऑलरेडी यह चीज़ शेयर की है, राइट. तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. स्पेशल कैटेगरी स्टेटस फॉर आंध्रा, ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, ठीक है. अब आपको एक चीज़ पता होगी कि इसके ऊपर एक एडिटोरियल आया था जो मैंने आपसे शेयर किया था. आपने पढ़ा है वो एडिटोरियल? एक एडिटोरियल है जो मैंने अभी आपको कुछ दिन पहले क्लास ली थी, उसमें आई गेस सेकेंड एडिटोरियल था. आप डिड यू सी दैट? जहाँ पे ये कह रहा था कि स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया गया है इंडिया में किस बेसिस पे, आप बताइए. स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया गया किस बेसिस पे? स्टेट्स हैव बीन रीऑर्गेनाइज्ड इन linguistic basis. Very good. States, right. So a Telugu speaking region was already carved out, and this was Andhra Pradesh, right, in 1953. But later on in 2014, when the Rayalaseema region and the Hyderabad region were bifurcated from Andhra Pradesh region, what was the basis of such a division? That's random division of states, stating that for administrative convenience you are dividing the state is not good. Now in this article that is of FAQ, you get to read another aspect of it, that Andhra Pradesh Reorganization Act 2014 bifurcated the state, notified on March 1
came into force on 2nd June 2014. Act specified many things. There was no mention of giving a special category status to Andhra Pradesh. Now, with the completion of the 24 Lok Sabha elections, the demand for special category state to Andhra is gaining attention. So, what is the entire history, right? Why does Andhra Pradesh not qualify for the special category state? Okay, and what are the states who have special category states? So, you will find here that it says that states, five factors stood as the qualifying benchmark if you want to gain the status of special category. स्टेटस ऑफ स्पेशल कैटेगरी अगर आपको चाहिए तो 5 बेंचमार्क्स हैं. देखिए, एक दिन का न्यूज़पेपर कितना सारा इन्फॉर्मेशन देता है. अगर आप ढंग से न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे तो ट्रस्ट मी, आपको पूरे दिन रिसर्च करने में इतना मज़ा आएगा, आप इतने मगन हो जाएंगे कि ठीक है यार, हर चीज़ के बारे में जानते हैं. स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के बारे में मैं कह रहा हूँ, अगर आपको बहुत बोरिंग लगता है कोई भी चीज़, तो आप जैसे आसाम का प्रोटेस्ट ऐसे करके रैंडम आसाम प्रोटेस्ट ट्विटर करके लिखिए. ट्विटर पे आपको ट्वीट्स मिल जाएंगे, वीडियोस मिल जाएंगी कि क्या चल रहा है वहाँ पे. मणिपुर के क्राइसिस पे आप रिसर्च करिए, उसके ऊपर कितने सारे डॉक्यूमेंट्रीज कवर हो रहे हैं. इन सब चीज़ों को देखते रहिए. मतलब 8 घंटे का अपना स्टडी रूटीन बनाना है अपने को, जिसमें वीडियोस, लेक्चर्स, राइट, न्यूज़पेपर सब मिक्स करके अपने आप को बिजी रखेंगे. अपने ब्रेन को एकदम मतलब ब्लॉक नहीं होने देना है, मल्टीपल डायमेंशंस पे लेके चलना है खुद को. तो 5 बेंचमार्क्स हैं यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए, राइट. जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन होगी, पॉपुलेशन डेंसिटी कम होगी, हिली स्टेट होंगे इंटरनेशनल बॉर्डर के पास, या स्टेट का सोशो इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस होगा, इंडस्ट्रीज अच्छी नहीं होंगी, और स्टेट के पास अपने फाइनेंसेस की कमी होगी, राइट. ये जो स्टेट्स हैं अरुणाचल प्रदेश, आसाम, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड. अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके के स्टेट्स को स्पेशल कैटेगरी मिली है. ध्यान से देखने वाली बात है कि पंजाब और हरियाणा इसके अंदर नहीं आते हैं. ध्यान से देखने वाली बात है कि वेस्ट बंगाल इसके अंदर आपको नहीं दिखाई देगा, राइट. देन आपको इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे स्टेट्स भी बॉर्डर से सटे हुए हैं, लेकिन आपको नहीं दिखाई देंगे. आंध्र प्रदेश, बेस्ड ऑन द अबव स्ट्रक्चर्स, does not qualify for the special category status and that the finance commission had already annulled it. फाइनेंस कमीशन ने भी इस चीज़ को सहमति नहीं दी है. However, the center offered आंध्र प्रदेश a special package, right, क्योंकि उसका बाइफर्केशन हुआ है. अब इस स्पेशल पैकेज में क्या था? तो Chandrababu Naidu of the TDP, who was then the part of the NDA alliance, agreed for the special package. The special package included the recognition of the पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट एज अ नेशनल प्रोजेक्ट विद फुल फंडिंग फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट. पैसे ले लो भाई डैम बनाने के, तो पोलावरम डैम बनाने के लिए पैसे दे दिए, टैक्स कंसेशन दे दिया एंड स्पेशल असिस्टेंस दिया. मिस्टर नायडू ने स्पेशल पैकेज एक्सेप्ट किया और इसको बोला कि बिट्रेयल, इट वॉज टर्म्ड एज बिट्रेयल बाय द ऑपोजिशन पार्टीज इंक्लूडिंग युवा जन श्रमिक रायतू कांग्रेस पार्टी, ये वहाँ की लोकल पार्टी. 2018 में मिस्टर नायडू अलायंस से वॉकआउट कर गए और नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया विच फेल्ड. Political analysts say that Mr. Naidu had succumbed to pressure from the opposition who were building up a strong campaign against TDP based on this issue. His volte-face from SCS to SP was being publicized as a betrayal of the state. ये local politics है कर्नाटका की. फिर does the Andhra still qualify? तो 15th फाइनेंस कमीशन, अब देखिए फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो 15th फाइनेंस कमीशन, राइट, के जो चेयरमैन एनके सिंह है, उनकी बुक आई है पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर. ये अपने आप एक क्वेश्चन बन गया जीके का. Portraits of Power stated that 14th Finance Commission had never said that special category status cannot be given and that it was up to the union government to take a call. Finance Commission ने कभी ये कहा ही नहीं, राइट. एनके सिंह ने कहा कि फाइनेंस कमीशन ने कभी ऐसा कहा नहीं है, रादर ये बोला है कि ये गवर्नमेंट का काम है. लेकिन क्वेश्चन किया था, द 14th Finance Commission instead of special category status had increased tax devolution to the state to 42% and also introduced revenue deficit grants for states facing revenue gap which Andhra Pradesh had already received. 14th फाइनेंस कमीशन ने कहा कि यूनियन गवर्नमेंट को उसको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं देना चाहिए, उसको टैक्स डिवोल्यूशन, मतलब जैसे जो यूनियन के पास जो पैसा आता है ना, यूनियन की जो इनकम होती है, मतलब गवर्नमेंट की इनकम कैसे होती है? टैक्स से.
तो यूनियन के पास जो इनकम होती है इसका कुछ शेयर जो है वो स्टेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है, स्टेट्स को क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो वो टोटल शेयर जो है यूनियन आंध्र प्रदेश को कितना कर दे, 42% कर दे, बढ़ा दे, ऐसा रिकमेंडेशन दिया था, और एक स्पेशल पैकेज दे दे। तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस विच हैज़ एन अरेंजमेंट ऑफ फंडिंग किस रेशियो में, 90:10 के रेशियो में। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाले स्टेट्स की जो फंडिंग होती है वो 90% सेंट्रल गवर्नमेंट करता है और स्टेट 10% करता है, राइट। कहता है कि फाइनेंस कमीशन ने मना नहीं किया है कि आंध्र प्रदेश के साथ क्या ऐसा नहीं कर सकते, आंध्र प्रदेश के साथ भी आप ऐसा अरेंजमेंट कर सकते हैं। यूनियन गवर्नमेंट कैन टेक अ कॉल एंड यूनियन गवर्नमेंट कैन रिफर इट टू 16 फाइनेंस कमीशन एंड नीति आयोग, एंड देन इस अरेंजमेंट के ऊपर प्रॉपर एनालिसिस के बाद आप डिसीजन ले सकते हैं। वाई इज़ द SCS इन द लाइमलाइट अगेन? जब से बाइफर्केशन हुआ है, रेवेन्यू डेफिसिट है, मतलब कि सरकार का एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और स्टेट के पास इनकम उसकी कम है। एडिशनली जो डेट ऑफ द स्टेट है वो सडनली इंक्रीज़ कर गई। अब देखिए अगेन स्टेट गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करना पड़ रहा है, ज़्यादा खर्चा ज़्यादा करना पड़ रहा है, और ये खर्चा जो है वो लोन से आ रहा है, राइट। मोस्ट ऑफ इट्स प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट हैव कम टू अ स्टैंड स्टिल, किसी तरह का कोई डेवलपमेंट और कोई प्रोजेक्ट बन नहीं पा रहे। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट द बिल्डिंग फॉर अ न्यू ग्रीन फील्ड कैपिटल एट अमरावती इज पेंडिंग एंड नीड्स फंडिंग, राइट। अमरावती जो कैपिटल बनानी है उसके लिए भी फंडिंग की रिक्वायरमेंट है। People are hopeful that since the TDP is again part of the NDA alliance, which does not have a clear majority in the center and is dependent on the MPs from Andhra Pradesh, it would be right time to press for the special category status for the overall development of the state. अब you can see that how 18th Lok Sabha coalition politics, how 18th Lok Sabha coalition politics is related to a dam, is related to a dam. What is the dam? What is the dam? What is the dam here? Which dam it is talking about? Anybody? Are we there in the meeting or we are not? कितने लोगों, पोलावरम डैम, okay. This is what the union government has granted, okay. And otherwise, what is the point of contact of state with the union government? Demand of this 42% share. And at last, where the state expects, what the state expects? State expects 90:10 funding. Okay. And what are people demanding? The people are demanding special category status. Yes. Okay. Now this particular article that you see here is about changes in the voter list. फ्रांस की पार्लियामेंट ने न्यू कैलेडोनिया में जो वोटर है उसको चेंज कर दिया, मतलब वोटर लिस्ट को चेंज किया है। और यहाँ पे लिखा है कि जो सिटीजन्स हैं जो उस टेरिटरी में, कहाँ पे, कैलेडोनिया में 10 साल से रह रहे हैं या पैदा हुए हैं, वो वहाँ पे वोट कर सकते हैं। अब अगर ऐसा हुआ
तो कैलेडोनिया की जो इंडिजिनस कम्युनिटी है कनाक्स, वो 43% है। इंडिजिनस कम्युनिटी जो है कनाक्स वो 43% है। और यूरोपियन यूनियन या जो फ्रांस के लॉयलिस्ट हैं, दैट इज़ वॉलिसियंस एंड फुटूनियंस, वो 37% है। तो वॉलिनियंस और फुटूनियंस को अगर वोटिंग राइट इस तरह से मिल जाएगा, क्योंकि वो अभी भी वहाँ पे माइग्रेट किए हैं, राइट, तो कनाक का फ्यूचर जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। दिस वुड ऑल्सो मीन एन अल्टरेशन ऑफ द इंटरनल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट टुवर्ड्स फ्रेंच सेटलर्स, राइट। कैलेडोनिया जो है वो फ्रांस की गेंड टेरिटरी है 1853 में, और वहाँ पे कनाक्स जो हैं रहते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से कॉलोनियल लॉज जो हैं कनाक्स पे हटा दिए गए और उनको फ्रांस की सिटीजनशिप दे दी गई। 1960 में माइग्रेशन हुआ फ्रांस से, और कनाक्स जो हैं न्यू कैलेडोनिया में माइनॉरिटी बन गए। एंगर्ड बाय द डिटोरिएटिंग सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एंड लैक ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट, एंड इंडिपेंडेंस मूवमेंट ग्रू अलॉन्ग विद द एमरजेंस ऑफ FLNKS इन 1984। 1984 हमारे यहाँ पे सिख राइट्स से रिलेटेड है, ऑपरेशन ब्लू स्टार। वहाँ पे आप देखेंगे कि कैलेडोनिया फ्रीडम मांगने लगा। द टेंशंस सोड बिटवीन द कनाक्स एंड लॉयलिस्ट बिटवीन 1984 एंड 1988 विच एंडेड विद द साइनिंग ऑफ द मैटिक नॉन एग्रीमेंट्स। क्लैट के लिए इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक है, इसको इस पे नोट्स बना लेंगे। मैटिक नॉन एग्रीमेंट्स इन 1988 एंड नोमिया अकॉर्ड इन 1998। कनाक और फ्रेंच गवर्नमेंट के बीच में एग्रीमेंट हुआ। ट्रांसफ़र ऑफ पावर, दिस अलाउड द ट्रांसफ़र ऑफ पावर फ्रॉम पेरिस टू लोकल अथॉरिटीज़ अलॉन्ग विथ 3 रेफरेंडम्स टू डिसाइड द टेरिटरीज इंडिपेंडेंस। टेरिटरी की इंडिपेंडेंस के ऊपर बात होने लगी। द इंडिपेंडेंस रेफरेंडम्स हेल्ड इन 2018। अब रेफरेंडम क्या होते हैं? पब्लिक वोटिंग, राइट। दे वर ऑल इन फेवर ऑफ फ्रांस। लोग वहाँ पे फ्रांस में जुड़े रहना चाहते थे, राइट, और न्यू कैलेडोनिया के इंडिपेंडेंस के अगेंस्ट में थे। जो रेफरेंडम हुए, जनता जनार्दन जो है वो फ्रांस में रहना चाहती थी। कनाक रिक्वेस्ट किए कि थर्ड और फाइनल रेफरेंडम को पोस्टपोन कर दिया जाए कोविड-19 में, जो 2021 में होने वाला था, लेकिन फ्रेंच गवर्नमेंट ने इस रिक्वेस्ट को डिसरिगार्ड कर दिया और उसकी वजह से लोअर टर्नआउट आए। रेफरेंडम में कम लोगों ने पार्टिसिपेट किया और 96% पॉपुलेशन जो है वो कहने लग गई, मतलब जितने लोगों ने कास्ट किया वोट, उसमें से 96% कह रहे थे कि हमें इंडिपेंडेंट नहीं होना है। इससे कनाक्स इन्फ्यूरिएटेड हो गए और फ्रेंच गवर्नमेंट से किसी भी तरह की बात करने से मना कर दिया। वाई डू कनाक्स वांट इंडिपेंडेंस? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से, जब से फ्रेंच सिटीजनशिप उनको मिली है, राइट, फ्रेंच कॉलोनीज़ जो ओवरसीज टेरिटरी हैं, न्यू कैलेडोनिया में माइग्रेशन पैटर्न जिस तरीके का है, कनाक कह रहे हैं कि ये सेटलर कॉलोनिज्म है। फ्रांस अपने लोगों को उस रीजन में कैलेडोनिया में बढ़ा देगा और कनाक माइनॉरिटी हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। अंडर द न्यू मॉडल सोशल इनइक्वालिटीज़ वाइडेंड लीडिंग टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडिजिनस कम्युनिटी। This was observed in the steel and nickel mining sectors, where indigenous people remained labor while non-indigenous people reaped economic and political benefits. अब आपको दिखाई देगा कैलेडोनिया में फ्रांस का स्टील और निकल का माइनिंग सेक्टर है, माइनिंग हो रही है, तो उन माइनों में काम करने वाली कम्युनिटी लोकल ही होती है, तो वो कनाक है। हमारे यहाँ पे भी देखिए आपको ट्राइबल्स का यही क्राइसिस जो है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड में दिखाई देगा कि इन माइंस में काम करने वाले लोग लोकल गाँव वाले हैं, लोकल ट्राइब्स हैं। ऐसा सेम सिचुएशन आपको फ्रांस में भी एक रीजन में दिखाई देता है, राइट। एंड डिस्पाइट फ्रांस प्रॉमिस टू रिवर्स social inequalities and better Kanak's political participation, the 2019 consensus showcased that poverty rate was 32.5%. 9% non-Kanaks experience poverty. उसी रीजन में 9% जो इंडिजिनस कम्युनिटी है वो 32.5% का पॉवर्टी रेट है उनमें, और अदर लोग सिर्फ 9%। तो स्कोप ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है रुक चुकी है, और फ्रेंच पार्लियामेंट का वोट जो है, जहाँ पे वो इलेक्टोरल कॉम्पोजिशन यानी राइट टू वोट ग्रांट कर रहे हैं नॉन इंडिजिनस कम्युनिटी को, वो कनाक की इंडिपेंडेंस को ख़त्म करने के जैसा देखा जा रहा है। फ्रांस का एंड गेम क्या है? सबसे पहले शांति लेके आओ, वायलेंस ज़्यादा होगी तो फ्रेंच सिटीजन्स ओवरसीज़ जो हैं उनको थ्रेट होगा और मैक्रोन की पार्टी की रेपुटेशन खतरे में जाएगी। सेकंड, फ्रांस की इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी में स्ट्रैटेजी में उसको इंटीग्रेट करिए, क्योंकि फ्रांस उसको इंडो पैसिफिक पावर में एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर मानता है। कहता है कि मेरी कुछ ओवरसीज टेरिटरीज़ हैं, राइट,
जो मेरे इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को पूरी दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट बनाते हैं। यानी कि ओशन रिसोर्सेज को माइन करने के लिए, ओशन रिसोर्सेज को माइन करने के लिए फ्रांस के किसी भी कंट्री के लिए ज़रूरी है कि उसके पास आइलैंड्स हों। जो अगर आइलैंड्स में आपका ऑक्यूपेशन होगा तो आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, देखो अपन तो सोच भी नहीं पा रहे हैं यहाँ तक, कंट्रीज़ कहाँ तक सोच रही हैं, हम तो सोच भी नहीं पा रहे कि अच्छा आइलैंड क्यों नहीं खाली कर रहे, क्योंकि आइलैंड पे रहेंगे तो ओशन को माइन कर सकते हैं। अगला रिसोर्स पूरी दुनिया मैं बता रहा हूँ आपको, समुंदर से निकलने वाले मिनरल सब चलने वाली है, क्योंकि ज़मीन पे तो इन लोगों ने आतंक मचा रखा है। क्लाइमेट चेंज बहुत तेज़ी से हो रहा है, पानी के नीचे कर दो बुलबुले में बात ख़त्म हो जाएगी। ऐसा ये कंट्री का सोचना है। हर कंट्री देखिए तो ओशन बेड माइनिंग की तरफ बढ़ रही है, तो फ्रांस भी यहाँ पे ऐसी चीज़ें कर रहा है। एडिशनली द लार्ज नंबर ऑफ फ्रेंच सिटीजन ऑथेंटिकेट्स फ्रेंच गवर्नेंस। फ्रांस के सिटीजन वहाँ पे ज़्यादा हैं तो फ्रांस का गवर्नमेंट भी होना चाहिए। आइलैंड रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेटेजिक पोजीशन फॉर फ्रांस इन द इंडो पैसिफिक, स्पेशली अगेंस्ट चाइना। देयरफॉर टू सील इट्स प्रेजेंस इन दीज टेरिटरीज integration becomes necessary, which is difficult as Kanaks demand independence. कौन करा रहा होगा ये? चाइना। सो चाइना और फ्रांस के बीच में आपको ये छोटा सा आइलैंड न्यू कैलेडोनिया दिखाई देगा। ग्रोइंग प्रेशर पॉइंट्स इंटरनेशनली मल्टीलैटरल फ्रेमवर्क में बढ़ रहे हैं। फ्रांस इंडिया के साथ इंडियन ओशन रीजन में बहुत एक्टिव है, काफ़ी अच्छे से कोऑपरेशन करता है। और इस जगह पे आपको देखेंगे कि चाइना फ्रांस के साथ भी कहीं ना कहीं जद्दोजहद चालू हो गई है। दबी आवाज़ में आपको चाइना यहाँ पे दिखाई देगा, क्योंकि कनाक के इंडिपेंडेंस की बात हो रही है। चाइना में हांगकांग के लोग इंडिपेंडेंस की बात करते हैं। तो ये गवर्नमेंट्स डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली इन रीजन्स में इन्वॉल्व हैं। ये आपको समझ में आएगा अगर आप इस आर्टिकल को दोबारा पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब अपने को देखिए, ये आर्टिकल पढ़ने से क्या फ़ायदा है? क्या हमने इसके ऊपर नोट्स बनाए? नहीं। क्या हम इसके ऊपर कुछ लिखेंगे? नहीं। लेकिन एक जनरल कॉन्टेक्स्ट में ये समझ में आता है कि अच्छा, ट्राइबल पॉपुलेशन, हर जगह की इंडिजिनस पॉपुलेशन जो है वो किस तरीके से प्रोटेस्ट कर रही है, क्या डायनामिक्स होते हैं, क्या सोशो इकोनॉमिक पैरामीटर्स होते हैं जो हमें जनरली असेस करना चाहिए। इससे आपका अगर क्वेश्चंस आते हैं डेफिनेटली आपका अंडरस्टैंडिंग बेटर ही होता है ना। हर चीज़ का डायरेक्ट रेलेवेंस नहीं है न्यूज़पेपर में, बट ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग जो है आपकी बढ़ेगी। क्लियर हो रहा है? आर यू फॉलोइंग इट? सो प्लीज़ इस स्टडी मटेरियल जो आपको ये जो हाईलाइटेड है इसको एग्जॉस्ट करिए, कम्प्लीटली रीड करिए। मैं आपको आई विल गिव यू सेट ऑफ पैसेजेस टू प्रैक्टिस। ठीक है, आई एम डिज़ाइनिंग देम, आई विल गिव यू सेट ऑफ पैसेजेस टू प्रैक्टिस फ्रॉम दीज सोर्सेज ओनली। यू कैन जस्ट प्रैक्टिस देम। हर पैसेज पे 2-3 क्वेश्चंस होंगे, आप उसके आंसर्स को चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका कितना स्कोर आया। तो ऐसे आपको क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपकी प्रिपरेशन जो है वो सही ट्रैक पे जाएगी। और मॉक्स जैसे अगर आप लगा रहे हैं, किसी भी कोचिंग का आप मॉक लगा रहे हैं, वैसे तो मैं एलपीटी और एलई दो ही कोचिंग को इंडोर्स करूँगा कि हाँ ठीक है, इनके मॉक लगा लो। विदिज्ञा के मॉक हैं वो मिल रहे हैं, बट उनमें कुछ प्रॉब्लम्स मैंने नोटिस करी हैं अभी फ़िलहाल, क्योंकि वो बहुत लेंदी पैसेजेस दे रहे हैं या ऐसा कुछ दे रहे हैं। ठीक है, तो आप कोई एक कोचिंग का मॉक लगाइए और प्लीज़ उसको देखिए, एनालिसिस जो है ज़्यादा करिए, नंबर ऑफ़ मॉक्स मत ज़्यादा लगाइए। गलत क्वेश्चन क्यों किया? क्योंकि मैंने देखा कि जितने बच्चे शिद्दत से अब एनालिसिस कर रहे हैं, मुझसे अगर पर्सनली भी मिलते हैं या फ़ोन पे मैसेज करते हैं, तो उनको अपनी मिस्टेक्स रियलाइज़ हो रही है और 70 से अभी वो पुश हो रहा है थोड़ा, 75-76 तक उनका मार्क्स जा रहा है। 76, ठीक है, कभी कभी 80 भी टच करेगा, लेकिन 76 के बियॉन्ड पुश हो रहा है स्कोर। तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है कि आप लगातार करते रहेंगे तो आपका स्कोर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। समझ रहे हैं? तो ये था आज का इंसाइट। इस पे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं। बाकी 12 जून के पेपर में एक सबसे बड़ी न्यूज़ यही है कि जो 2025 है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस की तरह डेजिग्नेट किया गया है। तो उसमें आपको थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए 23 के बारे में, 22 के बारे में, राइट। क्या सिग्निफिकेंस है इस क्वांटम साइंस का, इंडिया का क्वांटम साइंस के ऊपर क्या मिशन है। यू कैन ट्राई टू रीड ऑल ऑफ दीज एस्पेक्ट्स एंड दैट विल हेल्प यू, राइट। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज एनालिसिस। आई विल शेयर द प्रैक्टिस शीट। ओके, अब आपको 6 तारीख से लेके 11 तारीख का न्यूज़पेपर नहीं शेयर किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लास्टली मैं आपको एक एडिटोरियल का भी लिस्ट PDF बना के दूंगा, इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स होंगे उसमें, बस इधर 6 दिन से आप सिर्फ उतना पढ़ लीजिए और इस टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट और इनको पढ़ लीजिए एंड दैट्स इट. ठीक है. फ्रॉम हेयर फोर्थ विल ट्राई टू कंटिन्यू कि न्यूज़पेपर एनालिसिस जो न्यूज़पेपर है आपको प्रॉपरली डेली मिलता रहे. ऑलराइट. All right then. See you guys. Thank you.